Avoidable mistakes matter, marks don't matter. If there are 12,000 main seats, there are not more than 24,000 candidates who actually deserve to get selected in prelims. मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, कंटेंट अच्छा दे सकता हूँ, गाइडेंस अच्छी दे सकता हूँ, बेस्ट टीचर्स दे सकता हूँ, प्लान आपके लिए बना सकता हूँ, मैं आपके लिए मेहनत नहीं करवा सकता। अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम में अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो भाई फिर भूल जाओ सिलेक्ट होना। रिविजन इज नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन. If you are not testing your revision, you are just fooling yourself. हमें यहाँ पे 14 घंटा इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ज्यादा है, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि कोई और पढ़ लेता है. If you are not in this group, you will not make it. Hello and good morning and welcome to this mentorship session for Prelims Navigator Batch 1 and 2. यार हर बार जब मैं आपसे ये चैट में चीज पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है वगैरह, a lot of times I hear people saying कि यार मार्क्स नहीं आ रहे. कितनी बार हम इस बारे में डिस्कशन करें कि मार्क्स मैटर नहीं करते. मैटर एक चीज करती है कि आपकी अवॉइडेबल मिस्टेक्स कितनी हैं. अवॉइडेबल मिस्टेक्स मैटर, मार्क्स डोंट मैटर. राइट, हमने ये बात डिस्कस कर ली है. वी हैव डिस्कस दिस कि यार कोई भी टेस्ट जब होता है तो उस टेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है. है ना, किसी भी टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं ये बात हम देख चुके हैं. वी हैव डिस्कस दिस, वी हैव सीन इट. है ना, अब आप बार बार इस पे क्यों, मतलब अगर यार अभी भी आप अगर मार्क्स के बारे में सोचोगे, इफ यू स्टिल आर constantly bothered about how much marks you are getting, then what is the point of me doing this mentorship with you? If you can't learn this fact that this does not matter, this is an irrelevant metric. What matters is what I learn after analyzing my test. After analyzing my test, I understand that see there are some avoidable mistakes. Say no to avoidable mistakes. Avoidable mistakes constantly we have to avoid. वो हम एक चीज देख रहे हैं. दूसरा, I have told you how to review the test, to not read the solutions. अब होता क्या है, मुझे जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, my understanding is that most of you give tests very seldom. कभी कभी आपको मन करा तो आपने टेस्ट दे दिया. It's not a regular exercise. कभी रैंडमली 3-4 दिन बाद आपको याद आता है कि अरे टेस्ट भी तो होता है, तो आपने उस दिन टेस्ट दिया. जब आपने ऐसे टेस्ट दिया 3-4 दिन बाद रैंडमली, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दोज 3 to 4 days you give one test, you look at the score and you say अरे ये तो बहुत कम मार्क्स हैं, बात खत्म. and then you say कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, and game over. and then you think कि नहीं ठीक है छोड़ो इसको. This is the problem, because you are not giving tests regularly, you are not analyzing them properly, you are consistently only worried about how many marks you are going to get. It is no longer about कि यार मेरा actual improvement हो रहा है या नहीं. Let me repeat something that I told you before. If there are 100 students who are appearing for the prelims, there are only 40 who are studying. There are hardly 20 who are actually studying. Studying से मेरा मतलब है जिन्होंने syllabus पूरा किया है, who are also giving tests. And then there are hardly 10 who have given the tests, analyzed them, and also improved in every single test. Seen their own performance and improved in every single test. ऐसे 10 ही लोग हैं. For these 10 people, I think they are the best placed to get selected in prelims. Out of these 10, probably 5 will get selected. Right? So, to get from this group of 100 to this group of 5 is, to this group of 10 is nothing but hard work. To get from this 10 to this group of 5 who actually give mains, there is some luck factor and some performance factor कि आपका उस दिन कैसा होता है. You can have a bad day that day also. But
you can increase your chances to the point that you have a 50% chance of making it. That is my broad experience of speaking to aspirants, looking at people. I think if there are 12,000 main seats, there are not more than 24,000 candidates who actually deserve to get selected in prelims. Uske alawa, everybody else is not really in the race. Ab, what excuse do you have of not getting from here to here? आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे बात करते होंगे. आई एम श्योर यू अग्री विद दिस एनालिसिस. थोड़े नंबर शायद आप ऊपर नीचे करो कि नहीं सर 40 भी नहीं पढ़ते, हमें तो लगता है कि 30 पढ़ते हैं. नंबर सा हो सकता है आप ऊपर नीचे करो, बट यू वुड अग्री विद दिस एनालिसिस ब्रॉडली that out of everyone who is attempting, there are only 40% that are studying. उसके भी आधे हैं जो एक्चुअली टेस्ट देते हैं, और उसके भी आधे हैं जो टेस्ट देके खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं. They look at test and they actually analyze test, right? They actually analyze कि अच्छा यार ठीक है, मैंने ये टेस्ट दिया था, what are the mistakes that I made. जैसे मैंने आपको बताया एनालाइज करने के लिए, I've told you how to analyze a test. Now, what is stopping you from getting from here to here? ये प्रॉब्लम तो है नहीं. Everything is running on time. The content, you guys have admitted the content is good. Some people said it's the best content. In my view, it is the best content in the market. मतलब इससे अच्छा नहीं बनाया जा सकता, right? MCQs भी हो रहे हैं, लाइव MCQ सॉल्विंग भी हो रही है, PYQs भी हो रहे हैं, गाइडेंस सेशंस भी हो रहे हैं. एक एक चीज पे मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ. Then what is stopping you from getting from here to here? And if it is purely your own lack of effort or some other reason on your end, then I can't help you. Harsh reality है, I can't help you. I can sympathize with you, but I can't help you. Because इससे ज़्यादा हमारे साइड से हम कुछ नहीं कर सकते. Everybody is getting the same content, the same resources, the same options. In this, sandbox where everybody is getting the same resources, some people are reaching here, some are stuck here. और मैं तो outcomes की बात ही नहीं कर रहा. यहां तो मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि आपकी innate ability कितनी है. Of course, some of these people will have a greater ability, some will have a lesser ability. मैं तो ability की बात ही नहीं कर रहा. मैं तो सिर्फ effort की बात कर रहा हूं कि आपने पढ़ाई करी, आपने टेस्ट दिया और आपने टेस्ट को एनालाइज किया. This is not something you guys should miss out on यार. ये कैसे मिस हो रहा है? यहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे आप सबके सब, और नहीं पहुंच रहे हो. I look at the dashboards every single day and I see how many people give the test. It is consistently declining number. ये है टेस्ट का ग्राफ, कभी दिखाऊंगा आपको. ऐसा ग्राफ है कि कितने लोग टेस्ट देते हैं. ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस टाइप का है, बट यहां पे है हम अभी कि हाउ मेनी पीपल आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट. जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्टर्स आर डिक्लाइनिंग, कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग. अब बताओ, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस? आप मत करो ये काम, मत करो ये काम, मत करो मेहनत. बहुत सिंपल तरीका है, मत करो मेहनत. ठीक है. आई मीन आई कांट मेक यू डू हार्ड वर्क यार. मैं आपसे मेहनत नहीं करवा सकता हूं. मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, कंटेंट अच्छा दे सकता हूं, गाइडेंस अच्छी दे सकता हूं, बेस्ट टीचर्स दे सकता हूं, प्लान आपके लिए बना सकता हूं. मैं आपके लिए मेहनत नहीं करवा सकता. अगर आप ये पूरे स्पेक्ट्रम में अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो भाई फिर भूल जाओ सिलेक्ट होना. देन इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड, इट इज ऑन यू. इट इज ऑन यू एंड इट इज योर फॉल्ट अगर इसके बाद आप सिलेक्ट नहीं हो रहे तो. ठीक है, इट इज कंप्लीटली ऑन यू. अगर आप यहां आके सिलेक्ट नहीं होते, यू आर कंसिस्टेंटली इन दिस ग्रुप एंड स्टिल यू डोंट गेट सिलेक्टेड, देन आई कैन से ठीक है यार लक था, एक दिन खराब है. अगर आप इस ग्रुप में हो, आई एम श्योर ईदर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर आपका प्री जरूर हो जाएगा, कभी ना कभी हो जरूर जाएगा. मे बी दिस ईयर लक वॉज नॉट ऑन योर साइड, मे बी दिस ईयर लक वॉज नॉट ऑन योर साइड. दैट इज वन थिंग. ठीक है, बट अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो ना यार, इफ यू आर नॉट रीचिंग दिस ग्रुप, देन इट इज कंप्लीटली एंड अटरली योर फॉल्ट. इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस कि सर घर में कोई प्रॉब्लम थी, तबियत खराब थी, व्हाटएवर. अगेन आई कैन सिंपैथाइज विद यू, आई कांट हेल्प यू. प्रॉब्लम फिर भी आपकी ही रहेगी, गलती फिर भी आपकी ही रहेगी. इट इज एन अंडरस्टैंडेबल मिस्टेक, आई गेट इट, बट इट इज ऑन यू.
एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो, सिर्फ आपकी गलती है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई सिंपैथाइज, बट फिर भी इम्पैक्ट तो आप ही बियर करोगे। एंड आप जब तक इस ग्रुप में नहीं पहुंचोगे, आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, इस ग्रुप में अगर आप नहीं पहुंचोगे कि यार मैंने रेगुलर बिल्कुल पढ़ा, समझ के पढ़ा, टेस्ट दिया, इंप्रूव किया, आई हैव अ मेथड, आई एम कंसिस्टेंट, आई विल कंसिस्टेंटली स्टडी, consistently give tests and improve myself on the basis of analysis of those tests. अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, you are not in that group that is in the race. कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, you have to revise it with this idea कि यार ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ ये सोच के कि यार अब मैं टेस्ट दूंगा। Revision is not just for the purpose of revision. If you are not testing your revision, you are just fooling yourself. That is the reality. अब आप देख लो। This might appear very harsh to you, but this is a fact. अगर ये एग्जाम देके आप सीधा एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हो कि आज के एआई के एरा में, आप देख रहे हो एआई में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, एआई के एरा में आपको कोई गारंटी दे रहा है कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आप 60 इयर्स की एज तक गवर्नमेंट की हाईएस्ट सर्विसेज में रहोगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आपकी एमिनेंट पोजीशन होगी, उसके बाद आप मिनिस्ट्री में जाओगे, आपको फॉरेन अटैचमेंट्स भी मिलेंगी, ठीक है, you will always get a good house, get a good car, never want for money, like everything is sorted and government is going to take care of you, ठीक है, पावर अलग, रुतबा पोजीशन अलग। जब कोई ऐसी ऑफरिंग अवेलेबल होगी तो लोग इतने पागल हो जाएंगे उसके लिए। इफ देयर वर 10,000 सीट्स एंड 20,000 एप्लीकेंट्स तो ये गेम ही नहीं हो रही होती ना। बट सीट्स आर 1,000 एंड एप्लीकेंट्स आर 10 लाख। व्हाई? बिकॉज द रिवॉर्ड इज ग्रेट, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अभी आप देखो, आई मीन इट इज जस्ट माई फोरकास्टिंग, दिस इज जस्ट व्हाट आई एम फोरकास्टिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर। जैसे एआई इवॉल्व कर रहा है, राइट, it is going to take away a lot of tech jobs. What basically has happened last week in AI, why there is so much hype around it, कुछ ऐसा बहुत amazing मॉडल वगैरह नहीं आ गया है। AI has learned to code itself and it can code and improve itself. वो उस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो खुद पे इंप्रूवमेंट्स कर सकता है। अभी तक नया मॉडल बनाने के लिए ह्यूमंस की जरूरत थी। नाउ इट कैन कोड डेटा सेट्स एंड इंप्रूव इटसेल्फ। अब कोई लिमिट नहीं है उसके पोटेंशियल का कि वो कहां जा सकता है। If it can code and improve itself, you imagine what it can do? Coding and improving itself means it can achieve any ability. That means it will start wiping out jobs. Lawyers, accountants, tech people, the only sector that will stay shielded is medicine. That's what I think. तो ये कहाँ जाएंगे? ये young lawyers, young tech professionals and engineers, young accountants, जहां उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, when they don't get jobs, and the ones that are academically brilliant, they will say कि चलो यूपीएससी देके देख लेते हैं या गवर्नमेंट का एग्जाम देके देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो श्योरिटी है, यहाँ की जॉब तो नहीं जा रही, राइट। एंड दिस इज व्हाट आई फोरकास्ट। है ना वो कुछ लोग यूट्यूब पे जिनको बहुत शौक है कि यूपीएससी मत दो, यूपीएससी मत दो। अब बोल के देखो, अब बोल लो ना कि यूपीएससी मत दो। But the reward is so great. The reward is so great that obviously people will chase it. And if people will chase it, too many people will chase it, you will see that there are going to be people who are willing to work very hard, extra hard to make it. हमें यहाँ पे 14 घंटा इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ज्यादा है, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि कोई और पढ़ लेता है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ के आगे निकल जाएगा। दैट इज द हार्श रियलिटी। तो अगेन कमिंग बैक टू प्रीलिम्स, कुछ नहीं कर रहे हो आप अभी। स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि आप बहुत टफ पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, डेली बेसिस पे टफ है। आप अगर डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे दे देते हो विद अ ब्रेक ऑन संडेज, आई मीन 2 आवर्स ऑन संडे, 8 आवर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड 2 आवर्स ऑन संडे, इफ यू कैन गिव दिस मच टाइम यू विल मेक इट। इससे ज्यादा का काम नहीं है ये, ठीक है। तो आप एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग एफर्ट नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, क्वांटम ऑफ एफर्ट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे रोज करना है, ये नहीं है कि एक दिन में बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ठीक है। और
both these problems in much more magnitude you will face at the time of mains. ऐसा नहीं है कि अभी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आगे नहीं होगी, आगे भी होगी, इतनी ही होगी आगे भी, right? So even in the future you are going to face this problem. So you know, don't imagine कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? So again I am telling you, please keep this in mind. If you are not in this group, you will not make it, and it will be completely on you. It will be your fault, your problem. It will completely be on you. आप इस ग्रुप में अगर नहीं हो, आपका नहीं हो रहा है एग्जाम, ठीक है? इट इज ऑन यू आफ्टर दैट. अब आपकी मर्जी है, आपको जैसे मैनेज करना है आप कर लो, ठीक है? यू माइट हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ, अब कर लो. जो सब्जेक्ट अब पढ़ रहे हो उनको कर लो, बाकी अप्रैल एंड मई में रिकवर कर लेना. बट इफ यू आर नॉट इन दिस ग्रुप, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. नहीं होगा प्रीलिम्स, मेरे पास मत आना उसके बाद. प्लीज डोंट कम टू मी आफ्टर दैट सेइंग के सर हमने तो सब कुछ किया था. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि आपने कितना कुछ किया था. जब आप लोग मेरे पास आओगे ना प्री के बाद कि सर हमने तो सब कुछ किया था, प्री क्यों नहीं हुआ, आई विल ओपन योर डैशबोर्ड्स एंड शो यू कि आपने कितने टेस्ट दिए, हाउ मेनी टेस्ट यू हैव अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी टेस्ट यू हैव एक्चुअली यू नो गिवन, एंड इम्प्रूवमेंट आपने कितनी की है वो तो आप ही जानते हो. बट आपने टेस्ट कितने दिए ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि देखो ये आपका नाम है, आपने तो 40% टेस्ट भी नहीं दिए, फिर आप कैसे कह रहे हो मैंने सब कुछ किया है? बिकॉज आई मीट स्टूडेंट्स आफ्टर प्रीलिम्स एंड दे से एग्जैक्टली दिस. इसलिए मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, इफ यू डू नॉट work hard on every single step and you do not give tests regularly and you do not improve, you are not going to make it. In plain simple words. All right guys, thank you, bye bye.